میرا نام کامران ہے اور میں حیدرآباد میں رہتا ہوں۔ میرے گھر میں ایک کزن اور ایک خالہ ہیں۔ میری والدہ کا کافی عرصہ قبل انتقال ہو گیا تھا اور میرے والد اپنی ملازمت کے سلسلے میں دبئی میں رہتے ہیں اور سال میں ایک بار پاکستان آتے ہیں۔ تو میری خالہ اور میرے کزن ہمارے گھر میں رہتے ہیں۔ میرا کزن یہاں ایک اسکول ٹیچر ہے اور میں ایک بینک میں کام کرتا ہوں۔ میرے کزن کی عمر 20 سال ہے، میری خالہ کی عمر 35 سال ہے اور میں 25 سال کا ہوں۔ یہ اس وقت ہوا جب کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے پورا ملک لاک ڈاؤن کی زد میں تھا اور سب کچھ بند تھا۔ میرے کزن کا نام شاہ اور خالہ کا نام پروین ہے۔ شاہ کا سکول بند تھا اور وہ گھر پر تھی۔ میں بھی بینک سے جلدی گھر آ جاتا۔ میرا کمرہ اوپر تھا اور بینک سے واپس آنے کے بعد میں اپنے کمرے میں رہوں گا اور اپنا باقی وقت اپنے لیپ ٹاپ پر گزاروں گا۔ زینت بالتارت کورونا وائرس کی وجہ سے دوستوں کے ساتھ باہر جانا محدود تھا، اس لیے میں نے اپنا زیادہ تر وقت گھر پر گزارا۔ یہ ہفتے کا دن تھا۔ میں صبح اٹھا اور نیچے جا کر انکل کو بیٹھے دیکھا۔ میں نے اسے سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ چچا نے کہا، کامران میری امی کی طبیعت بہت خراب ہے، میں پروین کو لینے آیا ہوں۔ آنٹی کچن سے ناشتہ لے کر آئیں اور کہنے لگے، کامران میں تمہارے چچا کے ساتھ جا رہی ہوں، تمہاری ماموں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں 2-3 دن میں واپس آؤں گی۔ شاہ بھی اپنے کمرے سے آیا اور آنٹی نے اسے بھی اطلاع دی۔ پھر آنٹی نے ہم سب کے ساتھ ناشتہ کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ آنٹی تیار ہو کر باہر آئیں اور کہنے لگے، کامران شاہ کا خیال رکھنا اور گھر پر رہنا۔ میں نے آنٹی سے کہا، میں کورونا وائرس کی وجہ سے گھر پر ہی رہ رہا ہوں۔ آنٹی نے کہا، ٹھیک ہے، میں صرف سمجھا رہی ہوں۔ میرے چچا اور ان کی والدہ حیدرآباد میں رہتے ہیں، لیکن ان کا گھر ہم سے بہت دور ہے۔ آنٹی نے مجھے اور شاہ کو باتیں سمجھائیں اور انکل کے ساتھ چلی گئیں۔ میں نے چائے کا کپ لیا اور ٹی وی دیکھنے لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ شاہ نے ناشتہ ختم کیا اور گھر کے کام کرنے لگے۔ کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے ہم نے آنٹی کو کام کرنے سے روک دیا تھا، اس لیے آنٹی اور شاہ نے گھر کے تمام کام سنبھال لیے۔ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، شاہ کچن میں کام کر رہا تھا۔ شاہ نے کچن کا کام وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، مجھے پہلے گھر صاف کرنے دو، میں بعد میں سوچوں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ گئی۔ اب میں شاہ کو مختلف نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے پسند کرنے لگا تھا۔ میں نے کئی بار اپنے دماغ کو بھٹکانے کی کوشش کی، لیکن یہ شاہ کی طرف لوٹتا رہا۔ پھر میں نے اوپر جا کر فلم دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے شاہ سے کہا، میں اوپر جا رہا ہوں، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا۔ ایک بار اوپر میں نے اپنے لیپ ٹاپ پر ایک فلم رکھی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ شاہ میرے کمرے کا دروازہ کھول کر میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ میری نظر دروازے کی طرف گئی جہاں شاہ ہاتھ میں جھالو لیے کھڑا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، آؤ شاہ، کیا کام ہے؟ شاہ نے جواب دیا، کامران مجھے کمرہ صاف کرنا ہے۔ میں نے شاہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ کرو، لیکن جب تم کسی کے کمرے میں جاتے ہو تو سونگھتے ہو۔ شاہ نے جواب دیا، میں نے 2-3 بار سونگھا، تم مصروف تھے اس لیے تم نے میری بات نہیں سنی۔ تب شاہ نے کہا، میں ابھی نیچے جا رہا ہوں، میں تمہارا کمرہ صاف کر کے واپس آؤں گا۔ میں نیچے آیا اور ٹی وی آن کیا۔ میں سوچ رہا تھا، آج مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، شاہ میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ میں نیچے لاؤنج میں بیٹھا شاہ کے اوپر سے نیچے آنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وَبِالنَّرْ مِلْت اس کے برتاؤ سے یہ نہیں لگتا تھا کہ میں نے کچھ لمحے پہلے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ جب میں نے اسے نارمل دیکھا تو مجھے بھی نارمل محسوس ہوا۔ شاہ اپنا کام ختم کر کے میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا اور کہا، کامران مجھے تھوڑا پانی دو۔ میں اٹھا، فرید سے پانی لیا اور اسے پلایا۔ جب میں نے اسے پانی دیا تو میری نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ شاہ نے پھر پوچھا، کامران کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے گھبرا کر جواب دیا، نہیں کچھ نہیں۔ شاہ نے گلاس میرے حوالے کیا اور پوچھا، اب بتاؤ کیا پکانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، جو چاہو پکاؤ۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں کہ فریزر میں کیا ہے۔ شاہ فریزر کھولے کھڑا تھا۔ جب میں اٹھا تو شاہ نے کہا، کامران میری مدد کرو، یہ گوشت کا پیکٹ فریزر سے نہیں نکل رہا ہے۔ میں شاہ کے پیچھے گیا اور کہا، تم ایک طرف ہٹو، میں اسے نیلتا ہوں۔ شاہ نے کہا، ذرا زور لگاؤ، نکل آئے گا۔ میں اس کے پیچھے کھڑا فریزر سے گوشت کا پیکٹ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب میں نے پیکٹ فریزر سے نکالا تو شاہ نے کہا کہ پیکٹ کو پانی میں اس وقت تک رکھو جب تک یہ نرم نہ ہو جائے، میں پکاؤں گا۔ ہاں میں نہانے جا رہا ہوں، اوپر مت جاؤ، میں نہانے کے بعد واپس آؤں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اب نہا لے، میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں ٹی وی دیکھنے لگا، لیکن میرا ذہن شاہ پر تھا۔ اب مجھے لگا کہ شاہ بھی اس کھیل سے لطف اندوز ہو رہا ہے، کیونکہ شاہ کا جواب اچھا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا جب شاہ کی آواز آئی، کامران، میں نے کہا۔ جب میں واپس پلٹا تو میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں نے شاہ کو اس طرح پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مج استرحضر نلی آمران میں نے کہا، نہیں کچھ نہیں، تم اس لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ شاہ نے خوشی سے کہا،
तो आपको ये लिबास पसंद आया? मैंने कहा ये लिबास आपको बहुत सूट करता है। शाह ने मुड़कर मुझे लिबास दिखाया। फिर कहने लगी, कामरान अब मैं खाना बनाती हूँ, किचन में आकर मेरी मदद करो। मैं बस शाह को देखता रहना चाहता था। شاوشت دوراتا. मैंने पूछा, आपको किस मदद की जरूरत है? कहने लगी, मैं तुम्हें फौरन बता दूंगी। फिर कहने लगी, ऊपर से मसाले उतार दो, मैं सालन में डाल दूंगी। मैं शाह को जो भी मांगता था देता रहा। بتر جب إن मैं इसे देता रहा। हम बातें कर रहे थे जब शाह की खाला ने फोन किया। खाला ने पूछा, तुम कहाँ थे? तुमने कॉल का जवाब दिया कामरान? शाह ने कहा, आंटी मैं किचन में था और कामरान ऊपर सो रहा है। खाला ने पूछा, मैं ठीक हूँ। कहने लगी, मैं कल आऊंगी, चचा की उम्मी खैरियत से हैं। लटकने के बाद शाह ने कहा, कामरान मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, हाँ बताओ। शाह ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि आपको क्या बताऊं। मैंने कहा, जो भी हो मुझे बताओ। शाह ने कहा, मैं आपको पसंद करता हूं और वादा करता हूं कि आंटी से इस बारे में बात नहीं करूंगा। मैंने कहा, मैं कभी नहीं करूंगा। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। जब मैं टर्क पेंट और शर्ट पहने कमरे से नीचे आया तो शाह अभी तक टर्क पेंट और टी शर्ट पहने लाउंज में बैठा था। इसे देखकर मैंने कहा, मेरा प्यार और गुलाब। शाह ने कहा, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुमने गुलाब बनाया हो। शाह का चेहरा अजीब से चमक उठा। मैंने कहा, जान मुझे भूख लगी है। शाह ने जवाब दिया कि जो सालन तुम बना रहे थे वो जल गया। हम दोनों बातों में मसरूफ हो गए। मैंने कहा, चलो ये ठीक है, होटल कोरोना वायरस की वजह से बंद है, इसलिए हम फूड पांडा से कुछ मंगवा सकते थे। मैंने फूड पांडा पर खाना ऑर्डर किया और शाह के पास बैठते हुए कहा, जान बताओ, आंटी का अंकल से कब से अफेयर है? हम अभी बात कर ही रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। मैं बाहर गया और फूड पांडा से खाना मिला। मैं खाना लेकर अंदर आ गया। हमने साथ खाना खाया। खाने के बाद शाह ने कहा, कामरान मुझे बहुत थकावट और नींद आ रही है। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। फिर मैं सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। रात 8 बजे मैं अपने मोबाइल फोन की घंटी की आवाज से बेदार हुआ, जो कितने अरसे से बज रहा था। मैंने अपना फोन चेक किया और ये मेरी खाला का फोन था। मैंने फोन का जवाब दिया और कहा, हाँ खाला। दूसरी तरफ मेरी खाला गुस्से से भरी आवाज में बोले, कहा हो शाह तुम दोनों कॉल उठा रहे हो? मैंने पूछा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैंने कहा, आंटी मैं ऊपर सो रहा था और मुझे लगता है कि शाह भी सो रहे होंगे। चाची ने गुस्से से कहा, क्या वक्त हुआ है? रात के 8 बज रहे हैं। अगर तुम फोन ना उठाते तो मैं तुम्हारे चचा के साथ घर पहुंच जाती। पता नहीं तुमने क्या खाया और क्या सो गए। तब चाची ने कहा, नीचे जाओ और शाह को जग्गा दो और इसे मुझसे बात करने दो। मैंने कहा, हाँ मैं करूंगा। أفون أربت روم لأ. मैंने ताज़ा दम किया तो शाह गाफिल सो रहा था। शाह सोते में बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने शाह को आवाज दी, शाह उठो, 8 बजे हैं। शाह ने आंखें खोली और कहा, कामरान मुझे सोने दो। मैंने कहा, डार्लिंग उठो, चाची ने इतनी काले की हैं और मैं भी सो रहा था और तुमने अटेंड भी नहीं किया। वो गुस्से में थी। शाह ने कहा, मैं मोहब्बत के नशे में इस कदर मस्त था कि मैंने वक्त का सुराख खो दिया। वो वह कर बैठ गई और अपने मोबाइल की तरफ देखते हुए बोली, आप चाची अपने कितनी काले की हैं। शाह ने फोन किया। चाची को भी गुस्सा आया कि कोई फो लाउंज में आ गया। शाह ने कहा, कामरान मुझे वाकई भूख लगी है, 9 बजे हैं। मैंने कहा, डार्लिंग चुल्लू पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं और मैं बाजार से कुछ किराना लेकर आता हूँ। शाह ने कहा, ठीक है, जाकर ग्रोसरी ले आओ, मैं इस दौरान पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दूंगा। मैंने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और बाजार चला गया। मैंने कुछ ग्रोसरी खरीदी। जब मैं जा रहा था तो वहां एक बच्चा मोतियों और गुलाब के हार लिए खड़ा था। मैंने इससे मोतियों और गुलाब के तमाम हार लिए और घर चला गया। शाह ने गेट खोला और अंदर चला गया। ذالي آتا. शाह किचन में पिज़्ज़ा निकालने लगा। मैं सामान ऊपर वाले कमरे में छोड़कर नीचे आ गया। शाह ने पिज़्ज़ा और जूस पहले ही मेज पर रख दिया था। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी। ये मेरी खाला का फोन था। मैंने कॉल का जवाब दिया और कहा, हाँ खाला। आंटी ने पूछा, तुम कहाँ हो? मैंने कहा, इसके कमरे में। आंटी ने कहा, शाह? मैंने कहा, वो नीचे होंगी। आंटी ने कहा, वो फोन नहीं उठा रही। मैंने कहा, वो कोई काम कर रही होगी, दोबारा कोशिश करे। मुझे खदशा था कि आंटी को शक हो गया होगा, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। मेरे मोबाइल फोन की घंटी फिर बजी। मैंने देखा शाह बिला रहा था। मैंने कॉल अटेंड की और पूछा, भाभी शाह? इसने पूछा, तुम कहाँ हो? मैंने कहा, मैं नीचे आ रहा हूँ। मैंने कहा, ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। शाह से कुछ देर बात करने के बाद मैं लाउंज में बैठा था कि मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने वक्त देखा तो 11 बज रहे थे। شاتا. मैंने फोन का जवाब दिया और कहा, जी आंटी। आंटी ने पूछा, तुम कहाँ हो? मैंने कहा, अपने कमरे में। आंटी ने कहा, शाह? मैंने कहा, वो नीचे होंगी। आंटी ने कहा, वो फोन नहीं उठा रही। मैंने कहा, आंटी सो रही होंगी।
आंटी ने कहा, इतनी जल्दी? السنين ادنأت. मैं ने कहा, आंटी थक गई होंगी। अगर वो इसरार करती है तो मैं नीचे जाकर इसे जग्गा दूंगा। आंटी ने कहा, ठीक है, तुम भी सो जाओ, मैं कल आऊंगी। फिर मैंने फोन बंद कर दिया। सुबह हुआ कर देखा तो 11 बज रहे थे। आंटी ने फोन किया। मैंने फोन का जवाब दिया और आंटी की गुस्से से आवाज सुनी, कामरान दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूं। मैं चौंक। मैं दरवाजे के पास गया और इसे खोला। أن مرة ثامنة. वो गुस्से से बोली, इतनी देर से दरवाजे की घंटी बजा रही हो, तुम और शाह कहाँ थे? मैंने कहा, आंटी में सो रहा था, शाह बाथरूम में हो सकता है। आंटी दरवाजे में दाखिल हुई और मेरे आगे चलने लगे। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। फिर आंटी ने कहा, कामरान मुझे थोड़ा पानी दो। मैंने फरीद से पानी की बोतल ली, गिलास लिया और आंटी के पास गया और इसे दिया। फिर मैं ऊपर जाने लगा। शाह भी गुस्ल से फारिग होकर अपने कमरे में आ गया। शाह नहाने के बाद वो और भी खूबसूरत लग रही थी। शाह ने चाची को सलाम किया। चाची ने इसे करीब से देखा और कहा, नहाने का वक्त किया है? شاء. इसने कहा, चीची, मुझे गर्मी लग रही थी। चाची ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम रात भर जागती रही हो। शाह बोला, चाची, कल रात लाइट चली गई, इसलिए मुझे पूरी नींद नहीं आई। चाची ने कहा, ठीक है, एक कप चाय बना लो। शाह ने मेरी तरफ देखा और कहा, कामरान तुम नाश्ता भी बना लो। मैंने कहा, हाँ बनाओ, मैं फ्रेश होकर वापस आऊंगा। फिर मैं नहा कर नीचे चला गया और शाह साहिब नाश्ता कर चुके थे। शाह ने हमें चाय पिलाई और हम दोनों ने खाया। ودرت. शाह ने चाची से पूछा, चचा की उम्मी अब कैसी हैं? चाची ने कहा, हाँ वो अब ठीक है। शाह ने पूछा, आंटी अब किसके साथ हैं? आंटी ने जवाब दिया, तुम्हारे चचा चले गए। आंटी ने कुछ देर टीवी देखा और कहा, मैं थोड़ी देर लेट जा रही हूं, फिर रात का खाना बना लूंगी, तुम इस दौरान घर साफ कर लो। ये कहकर आंटी अपने कमरे में चली गईं। थोड़ी देर बाद आंटी अपने कमरे से बाहर आई और शाह की तरफ देखते हुए कहने लगे, शाह तुमने सफाई शुरू नहीं की। शाह फौरन उठा और बोला, आंटी आप अभी शुरू कर रही हैं? मुझे देखकर वो उठ खड़ा हुआ। मैंने लाउंज में टीवी ऑन किया और देखने लगा। आंटी ने शाह से कहा, तुम नीचे की सफाई करो, मैं कामरान का कमरा साफ करती हूँ। शाह ने कहा, आंटी मैं कामरान का कमरा साफ कर दूंगा। लेकिन आंटी ने कहा, नहीं तुम नीचे करो, मैं ऊपर करूंगी। الآن أورلئة. शाह नीचे की सफाई करने लगा। मैं टीवी देख रहा था। फिर मैं शाह और आंटी को छोड़कर नीचे आया, अपनी बाइक लेकर घर से निकल गया। मैं बाहर चला गया। मैं अपने दोस्त के घर आया। क्या हाल है? मैंने कहा, मेरे घर वाले बाहर थे, मैं बोर हो गया था, इसलिए तुम्हारी जगह पर आया हूं। मेरे दोस्त ने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और हम दोनों ने कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में बात करना शुरू कर दी। लेकिन मेरा दिल घर पर था, सोच रहा था कि वहां क्या हालात होंगे। मैंने कई बार शाह को मैसेज करने का सोचा, लेकिन मैं हिम्मत ना जमा सका। मेरे ज़हन में अजीब व गरीब ख्यालों की गर्दिश कर रही है। मैं दोपहर का खाना खाकर अपने दोस्त के ड्राइंग रूम में सोने चला गया कि अचानक फोन की घंटी बजी। शाह का फोन था। मैंने कॉल का जवाब दिया। शाह ने पूछा, कामरान कहाँ हो? मैंने कहा, कहीं नहीं। बताओ क्यों बुलाया? शाह ने कहा, आंटी मुझसे बात करेंगे। मैंने फोन बंद कर दिया। शाह ने फिर फोन किया। मैंने कहा, मैं आंटी से बात नहीं करना चाहता। शाह बोला, प्लीज कामरान, बस एक बार करो। मैंने कुछ नहीं कहा। आंटी ने कहा, घर चुल्लू। मैंने कहा, मैं अपने दोस्त के घर हूं और आज नहीं आऊंगा। आंटी ने कहा, घर चुल्लू, मुझे तुमसे बात करनी है। इसने फोन शाह के हवाले कर दिया। शाह ने कहा, कामरान अब आओ। मैंने कहा, ठीक है मैं आता हूं। मैं घर पहुंचा तो शाह ने गेट खोल दिया। मैंने अपनी मोटरसाइकिल अंदर खड़ी की। रात के 9 बजे थे। मैंने शाह से बात नहीं की और अंदर चला गया। आंटी लाउंज में बैठी थीं। मैंने इससे बात नहीं की, इसलिए मैं ऊपर अपने कमरे में गया और बेड पर लेट गया, सोचता रहा कि आगे क्या होगा। मैं उन्हीं सोचों में गुम था जब आंटी कमरे में आकर मेरे बेड के सामने बैठ गईं। मैं वह कर बैठ गया। आंटी ने कहा, कामरान। मैंने कहा, जी आंटी। आंटी ने कहा, कामरान मुझे बात करना नहीं आती। मैंने कहा, तुम मुझसे जो भी बात करना चाहते हो, करो। आंटी ने कहा, कामरान जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। मैं बेड से उठकर आंटी के कदमों में बैठ गया। चाची का हाथ अपने हाथ में लेते हुए इसने कहा, चाची जो होना था वो हो गया। तभी शाह साहिब कमरे में दाखिल हुए और बोले, आओ खाना खा लो। चाची ने शाह से कहा, तुम खाना सर्व करो, मैं वापस आऊंगा। शाह جبوا لن أتوء والدي مرة أردت. मैंने कहा, चाची अभी कुछ कहना चाह रही हैं। चाची ने हाथ जोड़कर कहा, कामरान बात यह है कि मैं जो कहना चाहता हूं कहने दो। चाची ने कुछ नहीं कहा और नून। मैंने पैगाम को देखा। शाह ने पूछा, क्या हुआ? मैंने शाह को जो कुछ हुआ इसकी पूरी तफसील बता दी। शाह ने जवाब दिया, कामरान मैं तुम्हें कुछ बताऊं? मैंने पूछा, हाँ बताओ, लेकिन शाह ने कुछ जिक्र नहीं किया।
اگلی صبح جب میں اٹھا تو ناشتہ تیار تھا۔ آنٹی کچن سے ناشتہ لا کر میز پر رکھنے لگے۔ شاہ بھی کچن سے باہر آ گیا۔ ہم تینوں نے ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں بینک چلا گیا۔ 1 گھنٹے بعد میرے موبائل پر شاہ کا پیغام آیا۔ شاہ نے لکھا، کامران کیا حال ہے؟ میں نے جواب دیا، پیارے میں کام کر رہا ہوں۔ شاہ بولا، جاؤ، میں خالہ کے گھر جا رہا ہوں، شام تک واپس آؤں گا، اب جلدی گھر آ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ میں کام میں مصروف ہو گیا۔ میں نے وقت دیکھا تو 2 بج رہے تھے۔ لاک ڈاؤن کے دوران بینک 1 بجے تک کام کرتا رہا۔ میں بینک سے نکل کر گھر کی طرف چل پڑا۔ میں نے گھر پہنچ کر گیٹ بجایا۔ تودر بعد آن والنآت. پھر وہ تیزی سے پیچھے مڑی اور اندر چلی گئی۔ میں نے بائک پارک کی اور لاؤنج میں آ گیا۔ آنٹی کچن میں چلی گئیں۔